Hello everyone, welcome to our today's session where we are going to look at a very famous soliloquy of English literature titled as To Be or Not to Be. Dear students, this soliloquy is taken from the Act 3rd, Scene 1st of a very famous tragedy of English literature named as Hamlet, composed by none other than the pride of English literature, William Shakespeare. Dear students, if you want to know soliloquy details, then go to the link given above. This is Vijendra Singh welcomes all of you to your own YouTube channel, Singh Vijendra, Assistant Professor. So let's start our today's topic. Dear students, before we take up a detailed analysis of this soliloquy, let's have a look on the brief introduction to the poet William Shakespeare. Dear students, the myriad-minded genius, the pride of English literature and pupil, the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist, William Shakespeare was born on April 26, 1564 at Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England, and he was taken away by death on April 23, 1616 at the age of 52. William Shakespeare was the greatest dramatist, sonneteer, poet, actor and playwright of the Elizabethan age. Dear students, as you know, the period of Elizabethan age is from 1558 to 1603 during the reign of Queen Elizabeth I in England. If we talk about the works of William Shakespeare, then William Shakespeare wrote 37 plays, a sequence of 154 sonnets, 2 long narrative poems, and a few other verses. Dear students, if we talk about his sequence of 154 sonnets, then his first 126 sonnets are addressed to a W.H. Dear students, who was W.H.? It is clearly nowhere mentioned, as his identity remains a mystery. Although William Herbert, the Earl of Pembroke, is frequently suggested because Shakespeare's first folio, 1623, was also dedicated to him. डियर स्टूडेंट्स, W.H. कौन थे? इसके बारे में भी बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं। कुछ लोग इसको इनका प्रिय मित्र अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन मानते हैं, कुछ इनको इनका पैट्रन मानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एंड द रिमेनिंग 28 sonnets out of 154 sonnets are addressed to a dark lady, perhaps his lady love. अब ये डार्क लेडी कौन थी, इसके बारे में भी क्लियरली कहीं पर भी मेंशन नहीं है। इसके बारे में भी बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं। कुछ इनको मिस फिटन कहते थे, कुछ इनको इंडियन लेडी मानते थे। अब इनको डार्क लेडी क्यों कहा जाता है? बिकॉज शी वॉज ए लेडी ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्सन। William Shakespeare's works are known throughout the world. He is often called England's national poet. He was called the bird और बर्ड ऑफ एवन। इनको बर्ड ऑफ एवन किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इनका जन्म स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में हुआ था और बर्ड का मतलब होता है कवि, तो इस कारण से इनको एवन का कवि भी कहा जाता है। Dear students, now let's have a look on the introduction to this soliloquy To Be or Not to Be by William Shakespeare. Dear students, To Be or Not to Be is a soliloquy spoken by Hamlet in the Act 3rd, Scene 1st of the very famous play, or you can say the very famous tragedy named as Hamlet, composed by William Shakespeare. Dear students, this soliloquy is one of the greatest monologues in world literature. This soliloquy lays bare the tormented mind of Hamlet. Means यह soliloquy torment जो दुखी मस्तिष्क है हेमलेट का, उसको हमारे सामने खोलकर प्रस्तुत करती है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो, soliloquy का मेन पर्पस होता है कि वो जो स्पीकर है उसके माइंड में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसके क्या प्लान्स हैं, वो क्या फील कर रहा है, उन सब के बारे में ऑडियंस को रूबरू कराना। तो उसी प्रकार से यह जो soliloquy है, हेमलेट के माइंड में क्या चल रहा है उसको दर्शकों के सामने खोलकर प्रस्तुत करती है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स हैव the meaning of the title To Be or Not to Be. To be means to live. Not to be means not to live, means to die.
Dear students, at the beginning of this soliloquy, Hamlet poses a question that whether he should continue to live or he should die. Dear students, now let's start the line by line analysis of this soliloquy, to be or not to be. So let's start. To be or not to be, that is the question whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To be or not to be, that is the question. Dear students, this soliloquy begins with a question by Hamlet as he sees as whether I should continue to live or I should die. That is the problem I have to solve. To be means जिया जाए और not to be या नहीं जिया जाए. That is the question. यही प्रश्न है, यानी जीवित रहना चाहिए या मर जाना चाहिए, यानी कौन सा रास्ता उत्तम है, बस यही प्रश्न है. Dear students, immediately after posing this question, Hamlet defines three possible courses. The first one is whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. Whether it's nobler in the mind means whether it is the mark of a noble mind, means क्या यह मस्तिष्क की श्रेष्ठ अवस्था है. To suffer means to undergo or to experience, कि सहन किया जाए. The slings and arrows, slings means गुलेल होता है and arrows means तीर होते हैं, but here slings and arrows are stand for oppression, means मुसीबतें. Of outrageous fortune, outrageous means cruel, निर्दयी, fortune means luck, भाग्य का. The slings and arrows of outrageous fortune means all the misfortunes of life, भाग्य के थपेड़े. Whether it's nobler in the mind, क्या यह मस्तिष्क की श्रेष्ठ अवस्था है. टू सफर, कि वह सहन करे. द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ आउटरेजियस फॉर्चून, निर्दयतापूर्ण भाग्य के गुलेलों और तीरों को, यानी उनके थपेड़ों को. यानी कवि कहना चाहता है कि निष्क्रिय होकर चुपचाप निर्दयतापूर्ण भाग्य के थपेड़ों को सहन कर लिया जाए. या नेक्स्ट हैमलेट डिफाइंस द सेकंड कोर्स which involves a positive action. He says as or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. Or to take arms या हथियार उठा लें against खिलाफ a sea of troubles. Dear students, this is the example of mixed metaphor. Sea of troubles means immensity of troubles, बहुत अधिक मुसीबतें, मुसीबतों का समुद्र. एंड बाई अपोजिंग, और उनका विरोध करते हुए, अपोजिंग मीन्स विरोध करते हुए, एंड देम मीन्स एंड दोज ट्रबल्स, उन मुसीबतों का अंत करते हैं. यानी दुखों और मुसीबतों के समुद्र के खिलाफ हम हथियार उठा लें और उनका विरोध करते हुए उनका अंत कर दें, यानी दुखों का डट कर मुकाबला करें. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हैमलेट कंसिडर्स ए थर्ड पॉसिबल सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, विच इज ही सीज एज to die, to sleep, no more, and by a sleep, to say we end. To die, या मर जाएं. To sleep, या सो जाएं. No more. No more means death is nothing more than a sleep. मृत्यु जो है वो नींद से बढ़कर कुछ भी नहीं है. And by a sleep, और इस तरह की नींद के द्वारा, to say we end means we assure ourselves that we thus end. हम अपने आप को ये विश्वास दिला सकते हैं कि हमने इस प्रकार से समाप्त कर दिया है. टू डाई, टू स्लिप, यानी मर जाएं या सो जाएं. नो मोर, जो मृत्यु है वो स्लिप से बढ़कर नहीं है. एंड बाई ए स्लिप, और इस तरह की नींद के द्वारा, टू शे वी एंड, और हम अपने आप को ये विश्वास दिला सकते हैं मानो हमने सारी समस्याओं का अंत कर दिया हो. यानी कवि कहना चाहता है कि सारी मुसीबतों का एक तीसरा सॉल्यूशन भी है, वो है कि हम मर जाएं, यानी सुसाइड कर लें, जो कि स्लिप से बढ़कर नहीं है. और इस तरह की स्लिप से हम अपने आप को यह विश्वास दिला सकते हैं कि हमने इन सभी मुसीबतों का अंत कर दिया है, जबकि ऐसा वास्तविक में होता नहीं है. He next says as the heart ache and the 1,000 natural shocks that flesh is here too. It's a consummation devotedly to be wished.
द हार्ट अटैक मीन्स द पेन्स ऑफ हार्ट, हृदय के दुख, एंड थाउजेंड और हज़ारों नेचुरल शॉक्स मीन्स नेचुरल ट्रबल्स, स्वाभाविक मुसीबतें, दैट फ्लैश हिज हियर टू मीन्स मैन इज लाइबल टू, मनुष्य के लिए मानो वो स्वाभाविक है, सामान्य है। यानी हृदय के दुख और हजारों स्वाभाविक मुसीबतें जो मनुष्य के लिए सामान्य है, यानी ये सभी स्वाभाविक हैं और सभी के जीवन में आती रहती है। यानी सभी के जीवन में हजारों स्वाभाविक दुख आते रहते हैं और दिल के दर्द रहते हैं, जो कि बहुत ही सामान्य सी बात है। इट्स ए कंजमेशन मीन्स कंक्लूजन, समापन। तो ये जो मृत्यु होगी यानी मर जाना होगा, जो कि नींद से बढ़कर नहीं है, यदि हम आत्महत्या कर लें तो हमारे जो हजारों जो स्वाभाविक मुसीबतें हैं उनका मानो ये कंक्लूजन होगा, उनका मानो ये अंत होगा। डिवोटली टू बी विस्ड, डिवोटली मीन्स धर्मपरायणता के साथ में, डिवोटली टू बी विस्ड यू कैन से फॉर विच वी मे प्रे, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यानी हम इन सभी मुसीबतों के अंत के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मानो जब हम मर जाएंगे तो ये जो सारी मुसीबतों का मानो ये कंक्लूजन होगा, कंजमेशन होगा, समापन होगा, जिसको धर्मपरायणता से चाहा गया हो। डियर स्टूडेंट्स, हैमलेट नेक्स्ट सेज एज टू डाई, टू स्लीप, perchance to dream, there is the rub, for in that sleep of death what dreams may come. To die, मर जाएं, टू स्लीप, सो जाएं, टू स्लीप, सो जाएं। यहाँ पे कवि टू स्लीप को दो बार इसलिए यूज़ करता है ताकि वो इस पे स्ट्रेस दे सके। यानी कवि कहना चाहता है कि मृत्यु जो है वो नींद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनाडिप्लोसिस। एनाडिप्लोसिस इस तरह का लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें किसी भी लाइन के अंतिम जो वर्ड हैं या अंतिम जो फ्रेज़ हैं वो दूसरी लाइन के शुरू में आए। तो टू स्लीप जो है लास्ट में आ रहा था, वो दूसरी लाइन के फर्स्ट में भी रिपीट होके आ रहा है। तो इस तरह के लिटरेरी डिवाइस को एनाडिप्लोसिस कहते हैं। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी डिवाइस नेम्ड एज एनाडिप्लोसिस। परचांस टू ड्रीम, परचांस मीन्स परहैप्स, संभावना है, टू ड्रीम्स स्वप्नों की। यानी मरने पर, जो कि एक स्लीप से बढ़कर नहीं है, यानी सोने पर कभी मृत्यु को स्लीप के से बढ़कर नहीं मानते हैं, इसलिए उस सोने पर स्वप्न आने की संभावना है, स्वप्न आने के चांस हैं। ए मीन्स यस, हाँ। देर इज़ द रब मीन्स देर इज़ द डिफिकल्टी, रब मीन्स ऑब्स्टिकल, बाधा, देर इज़ द रब, यही तो बाधा है। यानी सोने पर जिस प्रकार स्वप्न आते हैं उसी प्रकार मृत्यु के बाद जो ड्रीम्स हैं, यानी मृत्यु के बाद का जो जीवन है, उसकी सोच ही तो प्रमुख बाधा है जो हमें मरने से रोकती है। फॉर इन दैट स्लीप ऑफ डेथ, क्योंकि उस मृत्यु की नींद के अंदर व्हाट ड्रीम्स में कम, किस तरह के स्वप्न आए। यानी मृत्यु के बाद की उस स्लिप में ना जाने किस प्रकार के स्वप्न आए, यानी मृत्यु के बाद के जीवन में हमें जाने कैसी बाधाओं का सामना करना पड़े, यही तो हमें मरने से रोकती है। He next says as, when we have suffered of this mortal coil, must give us pause, there is the respect that makes calamity of so long life. When we have suffered of means thrown off, फेंक देना। This mortal coil means turmoil of life, means this human body, means when we have suffered of this mortal coil means when we have put aside this human body, यानी हमने जब इस शरीर को, इस नश्वर शरीर को जब हम छोड़ देंगे। must give us pause means will give us reason to pause, मानी रुकने का कारण बनेगी। यानी जब हम इस नश्वर शरीर को फेंक देंगे या छोड़ देंगे, तब उसके बाद की नींद में जो सपने आएंगे, यानी मृत्यु के बाद का जो जीवन होगा, वही तो असली बाधा है जो हमें आत्महत्या करने से रोक देता है। When we have suffered of this mortal coil, जब हम इस नश्वर शरीर को छोड़ देंगे, must give us pause, तो वही तो हमारे रुकने का कारण बनता है। There is the respect means consideration, that is the consideration that makes calamity होती है त्रासदी, दुर्घटना भी कह सकते हो, ऑफ सो लॉन्ग लाइफ, इतने लंबे जीवन की। देर इज द रेस्पेक्ट मीन्स दैट इज द कंसिडरेशन दैट मेक्स कैलेमिटी ऑफ सो लॉन्ग लाइफ, मीन्स दैट मेक्स अस सबमिट टू अवर कैलेमिटीज थ्रू आउट ए लॉन्ग लाइफ।
मीन्स यही वह बात है जो हमें जीवन भर की मुसीबतों को झेलने के लिए बाध्य करती है, या दैट मेक्स, जो बनाती है कैलेमिटी, त्रासदी को, ऑफ सो लॉन्ग लाइफ, इतने लंबे जीवन की, यानी इतने लंबे जीवन की त्रासदी को यही तो बात बनाती है। यानी मृत्यु की बाद की नींद में जो सपने आएंगे वही तो हमें इतना लंबा जीवन जीने के लिए बाध्य करती है, वरना तो हम कब का आत्महत्या कर कर अपने सारे दुखों का अंत कर देते। फॉर हु वुड bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the lost delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes. For who would bear the whips and scorns of time? whips होते हैं चाबुक एंड scorns होता है तिरस्कार, of time समय का, यानी समय के चाबुकों को और तिरस्कारों को, यानी जीवन के दुखों और मुसीबतों को वो would bear, कौन सहन करेगा। यानी यदि उन दुष्स्वप्नों का डर ना हो जो हमें मृत्यु रूपी नींद में दिखाई देंगे, तो यदि उन दुष्स्वप्नों का डर हमें ना हो, मतलब यदि हम आत्महत्या कर लें, तो जो समय के चाबुक हैं या तिरस्कार हैं, यानी जीवन के जो दुख और मुसीबतें हैं, तो उनको कौन सहन करेगा। द ऑपरेसर्स रॉन्ग, ऑपरेसर्स मीन्स अत्याचारी, रॉन्ग उसका गलत आचरण, यानी अत्याचारी व्यक्ति का गलत आचरण, शक्ति का निरंकुश शासन भी कह सकते हो आप। द प्राउड मैंस कंट्यूमली, और जो प्राउड मैन घमंडी व्यक्ति की, कंट्यूमली एरोगेंस हठ धर्मिता, यानी घमंडी व्यक्ति का हठ, यानी अभिमानी जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनकी हठ धर्मिता। द पैंग्स ऑफ डिस्पाइज्ड लव, डिस्पाइज्ड मीन्स तिरस्कृत, पैंग्स मीन्स दर्द, पीड़ा, जो तिरस्कृत प्रेम की पीड़ा है, यानी प्रेम में असफल हो जाने की जो तड़प है उसको कौन सहन करेगा। द लॉज डिले, और जो कानून के द्वारा न्याय में होने वाली जो देरी है उसको कौन सहन करेगा। द इंसोलेंस ऑफ ऑफिस, जो ऑफिस की जो धृष्टता है, यानी अफसर जो लोग जो नीचे काम करने वाले व्यक्तियों के साथ जो अपमानित करने वाला व्यवहार करते हैं उसको कौन सहन करेगा। एंड द स्पंस मीन्स तिरस्कार, और उस तिरस्कार को या अपमान को, दैट पेशेंट मेरिट, जो एक धैर्यवान, मेरिट मीन्स योग्य व्यक्ति के द्वारा जो सहन किया जाता है, ऑफ द अनवर्थी टेक्स, जो अयोग्य व्यक्तियों के हाथों उनको जो सहन करना पड़ता है उनको कौन सहन करेगा। यानी उन दुष्स्वप्नों का डर ना हो, यानी यदि हम आत्महत्या कर लें तो वो वुड बियर, तो कौन सहन करेगा। द विप्स एंड स्कॉन्स ऑफ टाइम, जो समय के चाबुक और तिरस्कारों को, यानी जो जीवन के दुख या दर्द या मुसीबतें हैं उनको कौन सहन करेगा। द ऑपरेसर्स रॉन्ग, The oppressor's wrong means the wrong suffered from oppressing foes, यानी अत्याचारी का जो गलत आचरण है उसको कौन सहन करेगा। The proud man's contumely means the arrogance of proud nobles, जो अभिमानी व्यक्तियों की हठधर्मिता है उनको कौन सहन करेगा। The pangs of despised love means the pains of being unsuccessful in love, प्रेम में असफल हो जाने की जो तड़प है उसको कौन सहन करेगा। The laws delay means the delay in obtaining justice in the law courts, यानी अदालतों में होने वाली देरी है उसको कौन सहन करेगा। Insolence of office means the insolent behavior with which ऑफिसर्स ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट्स, यानी अफसरों का जो नीचे काम करने वाले व्यक्तियों के साथ अपमानित करने वाला व्यवहार है उसको कौन सहन करेगा। एंड द स्पंस मीन्स स्नब और इंसल्ट, दैट पेशेंट मेरिट ऑफ अनवर्थी टेक्स मीन्स द स्नब और इंसल्ट विच ए पेशेंट पर्सन ऑफ मेरिट हैज़ टू इंड्योर फ्रॉम अनवर्थी मैन, अपमान जो एक धैर्यशील योग्य व्यक्तियों को अयोग्य व्यक्तियों के हाथों सहन करना पड़ता है। इन सबको कौन सहन करेगा यदि उन दुष्स्वप्नों का डर ना हो तो। यदि हम आत्महत्या कर लें तो हमें ये सब चीज़ें सहन करनी नहीं पड़ेगी। When he himself might his quietus make with a bare bodkin, who would fardels bear to grunt and sweet under a weary life, but that the dread of something after death. When he himself might his quietus make, when जबकि ही वह himself खुद ही might his quietus, क्वाइटस होता है हिज लाइफ सेंट, उसका अंतिम निर्णय मेक वो बना सकता है। यानी वो क्यों इन सब चीज़ों को सहन करेगा जबकि वो खुद ही अपने जीवन का अंत कर सकता है, अपने जीवन का अंतिम निर्णय बना सकता है। कैसे? विद ए बेयर बॉडकिन, बेयर मीन्स मेयर ओनली, केवल
विद ए बेयर, केवल एक बोडकिन होता है, एक डैगर होता है विद ए सिलेंडर ब्लेड, एक छोटा सा छुरा, मतलब एक छुरे से ही जब वो अपने जीवन का अंत कर सकता है तो क्यों वो इन सब चीज़ों को सहन करेगा। यानी कि वह स्वयं ही अपने जीवन का अंत मात्र एक छुरे से कर सकता है, यानी आत्महत्या करके वो इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकता है, तो क्यों वो इन सब चीज़ों को सहन करेगा जीवन में। वो वुड फाइडल्स बियर, फाइडल्स मीन्स ए बंडल ऑफ मिसलेनियस बर्डन्स, विभिन्न प्रकार के बोझों का ढेर। वो वुड फाइडल्स बियर, तो कौन व्यक्ति क्यों उठाएगा, क्यों ढोएगा फाइडल्स को, जो विभिन्न तरह के जो बोझ हैं जीवन में उनकी गठरी को क्यों उठाएगा। टू ग्रंट, कराह के साथ में, एंड स्वीट, पसीनों के साथ में, अंडर ए वीरी लाइफ, वीरी मीन्स उबा देने वाली, थका देने वाली जीवन के अंदर। वो वुड फाइडल्स बियर टू ग्रंट एंड स्वीट अंडर ए वीरी लाइफ मीन्स कौन थका देने या उबा देने वाले जीवन में कराह और पीड़ा या पसीने के साथ में विभिन्न प्रकार के दुखों के बोझों को ढोएगा। वो वुड फाइडल्स बियर, कौन दुखों की गठरी को ढोएगा, टू ग्रंट, कराह के साथ में, स्वीट, पसीनों के साथ में, अंडर ए वीरी लाइफ, एक थका देने वाले जीवन, मतलब कौन इतने लंबे जीवन को, इस थका देने वाले जीवन को जिएगा, और जो विभिन्न तरह के जो जीवन में दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, उनको कौन सहन करेगा। जबकि उसके पास रास्ता है कि वो एक छोटे से छुरे से ही अपना जो अंतिम निर्णय है, अपने जीवन का अंत कर सकता है, तो क्यों वह सब इन चीज़ों को सहन करेगा। लेकिन क्यों करेगा, आगे कहते हैं, बट दैट द ड्रेड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ, ड्रेड मीन्स डर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद में, लेकिन मृत्यु के बाद में किसी चीज़ का जो डर होता है वो ही हमें जो है इन चीज़ों को सहन करने के लिए बाध्य करता है। The undiscovered country from was born, no traveler's return, puzzles the will and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. The undiscovered country, एक अज्ञात देश, from was born, जिसकी बाउंड्री से, born means बाउंड्रीज, सीमाएं, जिसकी सीमाओं से, no traveler's return, कोई भी यात्री नहीं लौटा हो। Dear students, the undiscovered country is an example of metaphor, because here Hamlet is comparing the afterlife or what happens after death to undiscovered country. So this is an example of metaphor. The undiscovered country, एक अज्ञात देश, from was born, जिसकी सीमाओं से, no travelers return, कोई भी यात्री नहीं लौटा, puzzles the will, puzzles the will means resolution, puzzles the will, weakens the will power, वो हमारी जो इच्छा शक्ति है उसको कमज़ोर कर देता है। यानी उस अज्ञात देश जिसकी सीमाओं से आज तक कोई यात्री वापस नहीं लौटा, यानी मृत्यु के बाद के जीवन का जो डर है वो हमारी आत्महत्या के द्वारा सभी दुखों के अंत की जो इच्छा शक्ति है उसको मानो कमज़ोर कर देता है। यानी एक अज्ञात भविष्य हमारी इच्छा शक्ति को कमज़ोर कर देता है। एंड मेक्स अस, और हमें ऐसा बना देता है, रैदर, बजाय, बियर, सहन करने के लिए, दोज इल्स, उन मुसीबतों को, वी हैव, जो हमें है, यानी उन सभी दुखों को सहन करने के लिए मानो वो बाध्य कर देता है। देन फ्लाई, जबकि जाने में, टू अदर्स, एक ऐसी जगह, दैट वी नॉन नॉट ऑफ, जिनके बारे में हम नहीं जानते हो, यानी उस जगह जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जाने के बजाय वो जो डर है, एक अज्ञात भविष्य का जो डर है, वो हमें मानो उन सभी दुखों को जो हमें है उनको सहन करने के लिए मानो बाध्य कर देता है। यानी मृत्यु के बाद के जीवन में जाने की बजाय हम उन सभी दुखों को सहन करने के लिए वह जो डर है, दुष्स्वप्नों का जो डर है, वो मजबूर कर देता है और हम आत्महत्या नहीं कर पाते हैं और उन सभी दुखों को सहन करते रहते हैं आजीवन। Thus conscience does make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is sealed over with a pale cast of thoughts. Thus, इस प्रकार से, conscience means undue introspection, means सोचने समझने की जो शक्ति, विवेक कह सकते हो, या इस प्रकार अत्यधिक सोच विचार भी आप कह सकते हो। कॉन्साइंस में अत्यधिक सोच विचार है। डज मेक, वो बना देता है, कोवार्ड्स, कायर, ऑफ अस ऑल, हम सभी को। यानी इस प्रकार अत्यधिक सोच विचार करना कि क्या करें क्या नहीं करें, जिए या नहीं जिए, तो इस प्रकार जो अत्यधिक सोच विचार है वो मानो हम सभी को कायर बना देता है, कमज़ोर बना देता है। एंड दस, और इस प्रकार से, द नेटिव ह्यू, ह्यू मीन्स कलर, ऑफ रेजोल्यूशन,
नेटिव ह्यू मीन्स द नेचुरल कलर ऑफ इफेक्ट, जो स्वाभाविक रंग है वो। रिजोल्यूशन हमारी इच्छा शक्ति का, यानी इस प्रकार से जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है का जो मूल रंग है, इस सीकल रोवर वो कमज़ोर पड़ जाता है विद अ पेल कास्ट, कांतिहीन चयन ऑफ थॉट्स, विचारों के, यानी विचारों के कांतिहीन चयन की वजह से हमारी जो दृढ़ इच्छा शक्ति का जो स्वाभाविक रंग है वो मानो फीका पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। यानी अत्यधिक सोच विचार करने से जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है उस पर हम कायम नहीं रह पाते हैं और वो फीकी पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। And enterprises of great pitch and moment with this regard their currents turn away and lose the name of action. And enterprises means schemes, और जो हमारी योजनाएं होती है, schemes होती है of great pitch means substance, तात्पर्य की, and moment means importance, महत्व की, with this regard means in this way, इस तरीके से their currents turn away मीन्स टर्न असाइड, पथ भ्रष्ट हो जाता है, पथ से अलग हो जाता है, एंड लूज और खो देता है द नेम ऑफ एक्शन, एक्शन का नाम। एंड इंटरप्राइजेज ऑफ ग्रेट पिच एंड मूवमेंट मीन्स जो हमारी महान तात्पर्य और महत्व की योजनाएं हैं, विद दिस रिगार्ड, इन दिस वे मीन्स इस प्रकार से, देयर करंट्स, उनका जो प्रवाह होता है, टर्न अवे, वो पथ भ्रष्ट हो जाता है, यानी वो रास्ता भटक जाता है, यानी वो जो हमारी योजनाएं हैं वो मानो कमज़ोर पड़ जाती है। यानी इस प्रकार अत्यधिक सोच विचार करने के कारण जो हमारी महान तात्पर्य और महत्व की योजनाएं होती हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाती है, एंड लूज़ द नेम ऑफ एक्शन, और एक्शन के नाम से वंचित रह जाती है, यानी वो क्रिया रूप में कभी भी परिणित नहीं हो पाती है, या और सोच विचार में ही उलझे रह जाती है, यानी हम कभी भी उनको कार्य रूप में परिणित नहीं कर पाते हैं, यानी हम उनको कभी भी उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो हमारी सोच विचार में ही उलझी रहती है। So dear students, this is the line by line analysis of this poem. Now let's have a look on the structure and its form. Dear students, to be or not to be is in the form of a soliloquy which is one man's speech. जैसे कि हमने बताया कि एक soliloquy है जो एक आदमी की खुद की स्पीच होती है। It is uttered or spoken when no other character is present on the stage. जैसा कि soliloquy का गुण होता है कि ये तब कही जाती है जब कोई दूसरा कैरेक्टर स्टेज पर नहीं होता है, या दूसरा कैरेक्टर होता भी है अगर किसी कंडीशन में, तो जो soliloquy को बोल रहा है, जो उसका स्पीकर है, वो ये माना जाता है कि उसको उन सभी कैरेक्टर्स का पता नहीं है कि कोई स्टेज पे भी है, और जो दूसरे कैरेक्टर्स स्टेज पे उपस्थित होते हैं उनको ये अज्यूम करके चला जाता है कि वो दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं, जो soliloquy जो बोली जा रही है उसको वो नहीं सुन रहे हैं। इट्स पर्पज़ इज़ टू कन्वे टू द ऑडियंस द कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड ऑफ द स्पीकर। और जो soliloquy का मेन पर्पज़ होता है वो यही होता है कि वो जो स्पीकर है उसके माइंड में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो क्या फील कर रहा है, उसके क्या प्लान्स हैं, उनके बारे में दर्शकों को उनसे अवगत कराना। जैसे इस soliloquy के अंदर हैमलेट क्या सोच रहा था कि वो जिए मरे, या किस तरह के उसके मन में विचार आ रहे थे, उसके बारे में हमें पता चला। तो उसी प्रकार से जो soliloquy का मेन पर्पज़ होता है वो यही होता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या प्लान्स वो बना रहा है, क्या वो फील कर रहा है, उनको दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स हैव ए लुक ऑन द लिटरेरी डिवाइसेस which are used in this soliloquy. So the first one is the metaphor. डियर स्टूडेंट्स, मेटाफर का जो सबसे पहला एग्जाम्पल इस soliloquy में मिलता है वो लाइनें हैं, टू टेक आर्म्स अगेंस्ट ए सी ऑफ ट्रबल। तो जैसा कि हमने पोइम के एनालिसिस के दौरान बताया था कि इस सी ऑफ ट्रबल जो है वो एक मिक्स्ड मेटाफर का एग्जाम्पल है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मेटाफर में द क्वालिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज़ कैरिड ओवर और अप्लाइड ऑन द अदर। तो सी ऑफ ट्रबल्स कोई समुद्र नहीं हो सकता मुसीबतों का, तो यहाँ पे जो मुसीबतों के समुद्र से मतलब है द एगोनी ऑफ लाइफ, जो जीवन के दुख दर्द हैं, मुसीबतें हैं, उनके बारे में है। और स्पेसिफिकली हैमलेट्स आउन स्ट्रगल्स विद लाइफ एंड डेथ, और स्पेसिफिकली जो यहाँ पे आया है वो हैमलेट की जो खुद की स्ट्रगल्स थी जीवन और मृत्यु के बारे में, उसके बारे में, एंड हिज एम्बिवलेंस टुवर्ड्स सीकिंग रिवेंज के लिए भी यहाँ पे सी ऑफ ट्रबल का यूज़ किया गया है। और मेटाफर का यूज़ कहाँ हुआ इस पोएम के अंदर?
जो लाइनें हैं, द अनडिस्कवर्ड कंट्री फ्रॉम वॉज बॉर्न नो ट्रेवलर्स रिटर्न। तो इन लाइनों में जो अनडिस्कवर्ड कंट्री है, जो अज्ञात देश है, वो मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसके लिए आया है। तो ये भी मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया। तो एक ऐसा अज्ञात देश जहाँ जिसकी सीमाओं से कोई भी यात्री वापस नहीं लौटता, तो ये मृत्यु के बाद के जीवन के लिए आया है। तो ये भी मेटाफर का एग्जाम्पल है। जो दूसरा लिटरेरी डिवाइस इस soliloquy में यूज़ किया गया है वो है मीटोनिमी। डियर स्टूडेंट्स, मीटोनिमी इस तरह का लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें कोई भी आइडिया या कोई थिंग जो है वो रिलेटेड आइडिया और थिंग के साथ में सब्स्टिट्यूट कर दी जाती है, यानी समथिंग दैट क्लोजली रिजेंबल्स द ओरिजिनल आइडिया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल तो देखने को मिलता है मीटोनिमी का, वो है जैसे जो विलियम शेक्सपियर यहाँ पे स्लिप को उससे कंपेयर करते हैं डेथ के साथ में, यानी डेथ जो है वो स्लिप से बढ़कर नहीं है। टू डाई टू स्लिप यूज़ किया है ना, तो जो नींद के जो गुण हैं वो मृत्यु पर अप्लाई किए गए हैं। तो आपस में इन दोनों को आपस में क्लोजली जो रिजेंबल्स कर रहे हैं दोनों आपस में, तो यहाँ पे मीटोनिमी का एग्जाम्पल है। अगला जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है soliloquy में वो है रिपीटेशन। तो रिपीटेशन इसमें टू डाई और टू स्लीप ये रिपीट होके आया है बार बार। तो लाइन 5 के अंदर रिपीट हुआ है और लाइन 9 के अंदर रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे ये रिपीटेशन का एग्जाम्पल है। अगला जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एनाडिप्लोसिस। पोइम की एनालिसिस के दौरान भी हमने इसका जिक्र किया था कि एनाडिप्लोसिस क्या होता है। एनाडिप्लोसिस जब कोई वर्ड या फ्रेज जो किसी लाइन के अंत में आ रहा हो वो ही रिपीट होकर के दूसरी लाइन के शुरू में आ जाए, तो वहाँ पे एनाडिप्लोसिस हो सकता है। तो उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं soliloquy की लाइन, जैसे टू डाई टू स्लीप पर चांस टू ड्रीम। तो यहाँ पे जो टू स्लीप है वो पहली लाइन के अंत में आ रहा है और वो ही रिपीट होकर दूसरी लाइन के फर्स्ट में आ रहा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाडिप्लोसिस। Dear students, at the end, let's have a look on the conclusion of this soliloquy. Hence, in this soliloquy, Hamlet contemplates death and suicide, bemoaning the pain and unfairness of the life, but acknowledging that the alternative might be worst. Dear students, if you like this video, then don't forget to press the like button and share among your friends. Dear students, if you have any query or suggestion regarding this soliloquy, then don't forget write down it in the comment section, and don't forget to subscribe my YouTube channel Singh Vijendra, Assistant Professor. Thank you. Thanks for watching.